Hello everyone. Today we are going to focus on the SQL command, that is data manipulation language command, DML command of SQL. In previous session we have already learned how to use the insert command to insert the records into the table. And in today's session we are going to cover the update command to modify the content of the table, delete command to delete the or to remove the records based on certain condition, as well as we are also going to cover the select command to fetch the records from the table. Beside this, we are also going to cover few clauses which are used along with these commands. So let's begin with today's session. In previous session we created the table student with the following records. I hope every one of you is now fully aware of the process of adding the records into the table by using the insert command. You can either enter one record at a time or multiple records. Right now, let's before we move on to learn the update, delete, and the select command, let me tell you that the purpose of using the where clause. The where clause is used to specify condition while retrieving the data from the table or while updating or while deleting the data from the table. It can be used to modify it is used to modify the records, mostly used with the update command, select command, and the delete query. If the condition specified by the where clause is true, then only the result from the table is returned. That means whenever you give a particular condition in the where clause, if that condition is true, then only it is going to execute that command. It is going to fetch the records, or it is going to update the records, or it is going to delete the records only when the condition specified in the where clause is true. You can specify one condition or more than one condition by using certain operators like and or. Okay, not can also be used. We will cover them whenever we encounter these clauses. Now by default MySQL runs auto commit mode. We have already learned this process, that the MySQL in the MySQL not only DDL commands are auto committed, but DML commands are also auto committed. That means you need not to save these transactions. Whenever you run any of the DDL command, it is saved automatically in all the databases. Whereas in MySQL, the DML also saved automatically. To make it disable, to make it not behave like that, it should not save the DML commands automatically. Then we have to implicitly turn off the implicit mode as a false. So we will be using that clause later on. Auto commit mode equal to false करेंगे या जीरो करेंगे, auto commit equal to जीरो, तो उससे क्या होगा कि DML command automatically save नहीं होगी. That we will cover later on. Today's first command that we are going to cover after the insert is the update command. Now, as I already told you that if you want to modify the structure of the table, we will be using the DDL commands, and we already know that DDL commands alter, create, then this truncate, drop, rename. These were the DDL commands which deals with the structure of the table, whereas the update command is the DML command which is used to modify the content of the table. That means to modify the records of the table. Now for example, how to use it? First, what is the syntax, grammatical rule क्या है इसको यूज करने का? सबसे पहले कीवर्ड आएगा अपडेट, स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, डजंट मैटर. उसके बाद टेबल का नाम आएगा, कौन से टेबल को अपडेट करना. यहाँ टेबल कीवर्ड यूज नहीं होगा किसी भी डीएमएल कमांड के साथ. सो अपडेट and then the table name, then comes the keyword set, which column you want to modify, that column name will come. Then what is the value that you are going to give, the new value that you are going to give it to, equal to the value. Then if you want only a particular record should change, then by using the where clause we will be mentioning the certain criteria, that is by using certain condition, whether roll number equal to 10 or admission number equal to so and so or name is so and so, and wherever that condition is, whenever that condition is met, this update is going to be executed. For example, if we see a table name student with these three fields, that is SID, SName, and age, you can just go through the what all records are there. First record is with SID 101, name Adam, age is 15. Second is 102, name Alex, age 28.
Third record is SID 103, name Chris, and the age is 14. Now we want to modify the second record. We want to change the age from 28 to 18. So here I'm not going to modify the structure of the table. I'm going to modify the content. See, I want to change the age of the person whose SID is 102. ऐसा स्टूडेंट जिसकी जो स्टूडेंट आईडी है 102, उसका हमने क्या करना है, एज चेंज करनी है फ्रॉम 28 टू 18. So here we need to first find out what is the table name, which column you are going to modify, how much value you are going to give it to, and what is the condition. So here first thing that you want to know is what is the table name. Table name is student, so clear. Then first two words are clear from the command update student. Then which column you want to change, which column value you want to change. I want to change the age column value. So set age equal to how much, I want to make it 18, right? Then are you going to make 18 for everyone or 18 for only a particular person? So if you are going to make it only for a specific person, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, यूनिक कंडीशन क्या है जिससे उसी पर्सन की चेंज हो, तो उसकी स्टूडेंट आईडी. तो वेयर SID इक्वल टू 102. So now the complete command is update student, set age equal to 18, where S underscore ID is 102. Now how it is going to execute? First it will look for the record with student ID 102. सबसे पहले यहाँ देखेगा, सर्च करेगा कि स्टूडेंट आईडी 102 वाला रिकॉर्ड कौन सा है. जब उसको मिल गया रिकॉर्ड तो उसमें क्या करना है, उसने उसको अपडेट करना है. अपडेट में भी उसने कौन से कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है, एज. सेट के आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी, सेट इज द क्लॉज एज. एज हाउ मच, न्यू वैल्यू क्या है वो आएगी सीधी. पहले 28 है, अभी हमें 18 करनी है, तो एज इक्वल टू 18, आगे कंडीशन आ जाएगी वेयर स्पेस देके SID इज इक्वल टू 102. सो दैट्स ऑल. जब भी आप इसका दोबारा से रिजल्ट देखोगे बाय यूजिंग द सेलेक्ट कमांड, तो इस टेबल का मॉडिफाई कंटेंट नजर आएगा आपको यहाँ. यू कैन सी इट हियर, द एज चेंज फ्रॉम 28 टू 18, राइट. इट्स सो सिंपल. नाउ लेट्स हैव अ फ्यू मोर वेरिएशंस ऑफ these. Otherwise there may be a question later on, so I'm going to cover it again, that how to modify or update the multiple columns. So you want to change the name as well as the age, right? Then is it possible? If yes, then how? You can do it by using the same command update student set. एक ही बार यूज करना set. उसके बाद S name is equal to अभी. अभी in single quotes because it is a textual value. So single quote कॉमा एज इक्वल टू 17. उसकी एज भी कितनी करनी है, 17. और कौन से रिकॉर्ड का नाम चेंज करना है, SID 103. तो SID 103 का अर्लियर नेम क्या था, क्रिस. एज कितनी थी, 14. अब हम क्या करने जा रहे हैं उसकी, वी आर गोइंग टू मेक द एज एज 17 एंड नेम एज अभी. किसका, SID 103 का. तो SID 103 की नेम भी चेंज हो गया और एज भी चेंज हो गया, राइट. सो वी कैन हैव अ मल्टीपल we can update the multiple columns also, but only thing is you need to make them comma separated. एक कॉलम का नाम लिखा, उसकी वैल्यू लिखी, कॉमा डाल के दूसरे का नाम लिखा कॉलम का, उसकी वैल्यू लिखी, फिर जो भी कंडीशन देनी है वो दे दी. एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी करनी है वो भी कर सकते. Go through this properly. If you have a computer at home, you have installed MySQL, practice it. Otherwise we will cover later on practically in the lab. Okay, now the next command is the delete command. The delete command is used to remove the records from the table. You can remove all the records as it is done in the case of the truncate, or you can remove the specific records from the table which otherwise is not possible with the help of the truncate command. Delete command can be used with the condition to delete a particular, that means specific record delete करने तो आपको कोई condition देनी पड़ेगी, where clause use करना पड़ेगा. उसके लिए syntax क्या है, delete from आगे टेबल में. अगर इतना ही दोगे, delete from say student, तो क्या करेगा, सारा का सारा डिलीट कर देगा. नाउ यू वांट टू डिलीट ओनली अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड. सपोज करो मैं सिर्फ उसी का रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूं जहां पर स्टूडेंट आईडी 103 है, तो क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID 103. तो जैसे ही डिलीट करके हटेंगे, आपके पास रिजल्ट क्या रह जाएगा, ये वाला 101 एडम 15 एज रह जाएगी, 102 एलेक्स 18 एज रह जाएगी. ये वाला जो थर्ड रिकॉर्ड है जिसका हमने अर्लियर कमांड के अंदर नेम और एज चेंज कर दी थी, वो हमारा डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. हमारे पास रिजल्टेंट टेबल ये बचे, ठीक है. सो दिस इज द डिलीट कमांड. वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू.
what is the difference between delete and the update command. You have to write, explain with example, right? So 1 mark will be for writing the correct difference and 1 mark will be for giving the correct example, right? Then in the example you need not to draw the table. ये वाला टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं एग्जाम्पल में सीधा ऐसे कमांड दो और नीचे उसकी ऐसे डिस्क्रिप्शन लिख दो, दैट्स ऑल। एग्जाम्पल जब भी देनी है किसी भी कमांड की तो आपको सीधा ही उसकी कमांड लिखनी है, कुछ भी अज्यूम कर लो अपनी तरफ से और नीचे उसकी एक लाइन में डिस्क्रिप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड कोई भी नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको 25 नंबर का MySQL आएगा तो ये सोच लो कि 10 to 15 मार्क्स इसी कमांड के बेस पे होंगे। नाउ सेलेक्ट क्वेरी इज यूज्ड टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द, रिट्रीव मीन फेच करना, वापस लाना कहीं से। सो हम डेटाबेस के अंदर से टेबल होगा, टेबल के अंदर से डाटा को लेकर, जैसे हम क्या करते हैं, हम ट्रेन की टिकट बुक करवाते हैं, उसके बाद उसकी कंफर्मेशन चेक करनी है तो हम उसका PNN नंबर डालते हैं और PNN नंबर के बाद वो डाटा फेच करता है, हमें बताता है कि ये कंफर्म हो गई। अगर कंफर्म हो गई तो कौन सा कोच मिला है, कौन सी सीट मिली है, विंडो साइड मिली है, कौन सा है क्या नहीं है, एवरीथिंग डिटेल इज displayed on the window. So that is what is called retrieving. So retrieving the data from the table, the purpose is to get the records from the table, to fetch the records from the table, and the command uses select command. Now select command is used with so many variations. So many variations means बहुत सारे clauses हैं, बहुत सारी conditions हैं, बहुत सारे operators हैं, mathematical operators भी use हो सकते हैं, हम कुछ भी use कर सकते हैं, ठीक है। So इसको properly note करना है और इसको अच्छी तरह से समझना है। इसका सिंटैक्स क्या है, ग्रामेटिकल रूल क्या है यूज करने का, कि अगर मुझे कोई भी कॉलम डिस्प्ले करवाना है टेबल का, मुझे स्टूडेंट की नेम डिस्प्ले करवाना है, उसकी एज 2 करवाने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट एस नेम या जो भी नेम होगा कॉमा एज, एंड नहीं लिखूंगा, एंड और टू एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना इस केस में, वो सारा कंडीशन में। यहां पर कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ कॉलम के नाम आएंगे, कौन कौन से कॉलम आपको डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है, और उनके बीच में क्या रहना चाहिए, कॉमा। इसके अलावा कोई भी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, लेकिन टू एंड वगैरह एक्स्ट्रा यूज नहीं होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जैसे मुझे सैलरी करनी है डिस्प्ले, मेरे पास टेबल में स्टोर्ड है मंथ वाइज, मुझे ईयरली सैलरी स्टोर करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा, तो जो भी उसका ईयरली सैलरी होगी, एनुअल सैलरी होगी, वो डिस्प्ले करेगा। वी विल सी लेटर ऑन, ठीक है। अभी क्या है, अभी के लिए सिंटैक्स याद रखना है कि सिलेक्ट के बाद जो भी आपका पहला कॉलम डिस्प्ले करना उसका नाम आएगा, कॉमा, फिर सेकंड कॉलम, जरूरी नहीं है जो टेबल के अंदर सीक्वेंस में डिफाइन करते हुए दिए थे वही कॉलम आएंगे, उसी सीक्वेंस में कॉलम आएगा, ये आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट इज, जितने भी कॉलम आपने देने हैं वो कॉमा सेपरेट करके आप दे सकते हो। यहाँ n इसलिए लिखा कि 1 2 3 4 5 7 8 9 10 जितने भी आपने करने उतने करके, वंस यू आर सेटिस्फाइड उसके बाद लिखिए फ्रॉम, ये फ्रॉम कीवर्ड आएगा। अब लिखिए कौन से टेबल, उस टेबल का नाम, सपोज करो मैंने स्टूडेंट टेबल से करना है तो मेरी कमांड क्या हो जाएगी, सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मुझे सारा कुछ ही करना है उसका, सिलेक्ट SID कॉमा नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ये हो गया। इसका एक ऑल्टरनेट भी है, हमारे पास कुछ वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, जैसे विंडोज में होते हैं क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक साइन, वैसे यहां पर भी है हमारे पास। हम लोग अगर लिख दें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टार का मतलब क्या, एवरीथिंग, तो सारे के सारे कॉलम दिखा देगा, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम ही डिस्प्ले करवाने हैं तो फिर मैं स्टार यूज नहीं करूंगा, फिर मैं लिखूंगा सीधा ही सिलेक्ट, पहला कॉलम कौन सा डिस्प्ले कराना है, कॉमा, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आगे फ्रॉम, आगे टेबल का। लेट्स सी इट थ्रू द एग्जांपल्स, ठीक है। रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन विद द सिलेक्ट, क्या क्या कर सकते हैं हम सिलेक्ट कमांड के थ्रू, वी कैन रिट्रीव अ सिंगल कॉलम, एक सिंगल कॉलम को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं टेबल के, उसके मल्टीपल कॉलम को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसके ऑर्डर जो है, ऑलरेडी मेरे पास पहले SID है, फिर नेम है, फिर एज है, मैं चाहता हूं उल्टा डिस्प्ले करवाऊं, पहले एज डिस्प्ले करवाऊं, फिर नेम, फिर SID, तो वो भी कर सकता हूं। रिट्रीविंग द मल्टीपल कॉलम और चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिस्प्ले ऑफ द कॉलम्स, रिट्रीविंग ऑल द कॉलम, स्टार लगा के सारे कॉलम इकट्ठे डिस्प्ले करवा सकता हूं। एलिमिनेट द डुप्लीकेट वैल्यूज, मैं डिस्टिंक्ट क्लाउज का यूज करूंगा तो वो डुप्लीकेट शो नहीं करेगा। अगर एक ही जैसे दो नाम आ गए, सपोज करो स्टूडेंट नेम में अजय 2 बार आ गया, लेकिन एज डिफरेंट है, तो अगर मैं चाहता हूं कि एक ही बार दिखाए तो वो एक ही बार दिखाए, डिस्टिंक्ट
डिस्प्लेइंग ऑल द रिकॉर्ड, मैं ऑल कीवर्ड भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ऑल नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो सारे के सारे नाम आएंगे, चाहे वो डुप्लीकेट है तो रिपीट हो जाए। नाउ एग्जाम्पल टू सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, मैंने आपको पहले बताया कि वी कैन यूज द एस्ट्रिक साइन टू एड्रेस ऑल द डाटा। सारे के सारे कॉलम्स अगर हमें एड्रेस करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं, तो मैं एस्ट्रिक साइन यूज कर सकता हूँ, स्टार यूज कर सकता हूँ, स्टार करेक्टर टू रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड, सारे कॉलम, सारे रोज, पूरे का पूरा दिखाएगा। एग्जाम्पल टू सिलेक्ट द रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द कंडीशन, लेकिन इसके अंदर भी मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम इक्वल टू अभी। इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी स्टूडेंट होगा, अगर एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा आएगा, अगर सिंगल है तो अभी सिंगल स्टूडेंट के क्या करेगा, वो उसमें से उस रिकॉर्ड को फेच करके आपको शो कर देगा, उसके सारे कॉलम आ जाएंगे। लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। एक ब्रेक लेता हूं बीच में, यहां मैं शो डेटाबेसेस कमांड लगा रहा हूं, सो दैट यू कम टू नो कि व्हाट ऑल डेटाबेसेस आर एग्जिस्टिंग। उसके बाद मैंने अपना डेटाबेस देख लिया है 11th SQL, उसको यूज़ किया। अब मैं इसके अंदर देखूंगा कौन कौन से टेबल्स हैं। शो टेबल्स, स्टूडेंट टेबल है इसके अंदर पड़ा हुआ। लेट मी सी व्हाट ऑल रिकॉर्ड्स आर देयर। तो सिलेक्ट स्टार, सारे रिकॉर्ड देखने मुझे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारे रिकॉर्ड आगे 3 रिकॉर्ड थे। अगर मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, से सिलेक्ट, सॉरी पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, सिलेक्ट ADNO कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, एडमिशन नंबर और नेम और रिकॉर्ड सारे के सारे आ गए, लेकिन कॉलम कौन से 2 डिस्प्ले हुए, आउट ऑफ 5 ओनली 2। तो डिग्री ऑफ द टेबल इज 5, कार्डिनलिटी इज 3, टोटल नंबर ऑफ टुपल्स कितनी है 3, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 5। तो डिग्री कितनी है इसकी 5, और कार्डिनलिटी कितनी 3, रिजल्टेंट टेबल की डिग्री कितनी है 2 और कार्डिनलिटी 3, ठीक है। नाउ आई वांट टू say see based on certain condition, I want to see all the columns, that is select star from student where say ADNO equal to 222। लो सिर्फ 222 वाले का रिकॉर्ड है, यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम है, यहाँ पर सारे कॉलम है। तो मैं जैसे मर्जी कंडीशन, अब कंडीशन अगर मुझे ये देनी हो कि वेयर नेम इक्वल टू से KP गुप्ता, अगर मैं ऐसे करूंगा और सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस करूंगा तो आई इनकाउंटर एरर। देखो आ गया एरर। अब इस एरर को ठीक कैसे करना है, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए मैं दोबारा से अप एरो की प्रेस की, वापस वहीं आ गया। मुझे यहाँ एक सिंगल कोट लगाना था क्योंकि टेक्सचुअल वैल्यू थी नेम में, तो उसको सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लूड करना जरूरी है। अब सिंगल कोट के करने के बाद सेमीकोलन लगाया और एंटर प्रेस किया, यू कैन सी it is showing me the record with the name KP Gupta only, rest of the records are not displayed, so you can display the records based on a certain condition। स्टार करोगे सारे का सारा आ जाएगा, अगर उसके आगे कंडीशन नहीं दी है, स्टार के साथ भी कंडीशन दे दी जैसे यहाँ पर, तो फिर उतना ही। अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में देखना है तो मैं ये दे सिलेक्ट से एज कॉमा, सॉरी इसमें एज नहीं है इस टेबल में, फी कॉमा सेक्शन कॉमा क्लास। अगर आप चाहो कि मैं कोई कॉलम छोड़ सकता हूँ इसमें से, बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। लो मैंने नेम ही छोड़ दिया, एडमिशन नंबर, सॉरी आई एम नॉट कंप्लीटेड, फ्रॉम स्टूडेंट। फीस आया पहले, फिर सेक्शन आया, क्लास आया, नेम को मैंने स्किप कर दिया कमांड में से ही। देखो सिलेक्ट फीस कॉमा सेक्शन कॉमा क्लास कॉमा एडमिशन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, नेम भी गया नहीं तो उतना ही डिस्प्ले करा दे, नीचे देखा भी कितने रिकॉर्ड उसने फेच किए। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल इज कॉल्ड द टुपल, ठीक है। नाउ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर नॉर्मली मैथमेटिक्स में क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन, प्लस माइनस, डिवीजन, ठीक है, और ये सारे के सारे इसमें यूज हो सकते हैं। कैसे यूज होंगे, से SID कॉमा एस नेम कॉमा एज प्लस 5 फ्रॉम द स्टूडेंट। अब क्या करेगा, आपको हर एक स्टूडेंट की स्टूडेंट ID दिखाएगा,
उसका नाम दिखाएगा, लेकिन उसकी जो एज दिखाएगा तो उसमें 5 ऐड कर देगा, हर किसी की एज में 5 ऐड करके दिखाएगा। एक्चुअल टेबल के अंदर ये मॉडिफिकेशन नहीं होगी। सी, this command is not used to change the content of the table. This command is only for displaying the content of the table. जो select command है वो सिर्फ उसके रिकॉर्ड्स को शो कर रही है, डिस्प्ले करा रही है। चेंज करनी है तो अपडेट कमांड है। सो अगर मैं यहां लिख दूं कि sid sname age +5, तो आपको +5 करके दिखाएगा जरूर स्क्रीन के ऊपर, लेकिन एक्चुअल टेबल के अंदर उतना ही रहेगा। जैसे अगर टेबल के अंदर इंप्लॉय की सैलरी स्टोर रखी है पर मंथ, मुझे डिस्प्ले करवानी है ईयर बेसिस पे, तो सिलेक्ट empid ename sal into 12 फ्रॉम द एम, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, कैसे, अब इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट adno name from student, ओके, इसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं, कॉमा एज प्लस, एज नहीं है इसमें, इस टेबल में है फीस, फीस प्लस हर किसी की फीस में मैं से 100 वैल्यू ऐड फ्रॉम, हेडिंग भी वही बन गई एक्सप्रेशन, फीस प्लस 100। देखो पहले वाली की फीस कितनी थी मेरे पास, जब सारे रिकॉर्ड देखूँ मैं, पहले वाली की फीस थी 2500, दूसरे की 4500, तीसरे की 3000। अब मैंने कितना ऐड किया उसमें, यू कैन सी 100 रुपीज़ ऐड किया, 2500 से 2600 बन गई, 4500 से 4600 बन गई, या 3000 से 331 बन गई। नाउ यू विल से कि सर ये तो चेंज आ गई सामने। नो, ये दिस इज ओनली फॉर डिस्प्लेइंग पर्पस। अगर मैं इसको ओरिजिनल टेबल को दोबारा से देखूंगा, सारा कुछ रिकॉर्ड्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट, आप देखो उसमें ओरिजिनल वैल्यू वैसी की वैसी है, 2500, 4500, 3000। ये जो डिस्प्ले करने के लिए ही शो हुई है, ये कंटेंट में उसके टेबल में एक्चुअल चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो हेडिंग है, इट लुक्स ऑड, आई वांट द हेडिंग शुड बी अपडेटेड फी। ठीक है, जैसे ये था, डिस्प्ले करवाया था मैंने, ये था। तो क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसे अपडेट करेंगे तो मैं अपडेटेड फी 500 करता हूँ हर किसी। ठीक है, अब इसको जो मैंने जो नाम देना है कॉलम का हेडिंग, आई वांट इट्स ओरिजिनल नेम फीस प्लस 500 ना आए, इसकी जगह इसकी आ जाए अपडेटेड वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एज अपडेटेड, बिना एज के भी चल जाता है हमारी, बिना एज लगाए। इसको बोलते हैं अलियास नेम। अलियास नेम मीन्स डुप्लीकेट नेम, जैसे रामू और शामू। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर आ गया कि जो हेडिंग है वो फीस प्लस 500 नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, अपडेटेड वैल्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। सो ये हेडिंग क्या बना, अपडेटेड वैल्यू, फी प्लस 100 या फी प्लस 500 नहीं आया। ठीक है, ये भी एक टेम्परेरी है, सिर्फ डिस्प्ले पर्पज के लिए। अगर मैं वापस जाऊं स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट करूं तो वैसे का वैसा ही है, देखो फीस। So you can give the alias name, you can use the arithmetic operators, multiplication भी यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि डिस्प्ले करके दिखाए लेकिन कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड में ही सम ऐड करे या मल्टीप्लाई करे, तो वो भी हो सकता है। से मैं फीस इंक्रीज करनी है, ये है फीस इंक्रीज की, लेकिन आई वांट टू मेक द चेंज ओनली वेयर द एडमिशन नंबर इज, वेयर ADNO इक्वल टू 333 में ही 500 ऐड करके दिखाए, बाकियों का वैसे का वैसा ओरिजिनल रहने दें, या शो ही वही करेगा, सॉरी, फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर द एडमिशन नंबर, सिर्फ उसी स्टूडेंट का शो करेगा आपको जिस जो कंडीशन ये मेट हो जाएगी, तो उसी में ही 500 ऐड करके 3000 से 3500 करके शो कर दिया। ये भी टेम्परेरी है, सिर्फ दिखाने के लिए किया, एक्चुअल टेबल के अंदर वैसे का वैसा कंटेंट रहेगा, ये देखिए। ठीक है, सो दिस इज द सिलेक्ट कमांड दैट वी लर्न हाउ टू यूज। ऐसे करके सिलेक्ट कमांड यूज कर सकते हैं आप, जैसे मर्जी दो, जैसे ये रहा,
फ्रॉम द स्टूडेंट 1, पूरा का पूरा रिकॉर्ड ये रहा, उसमें ये फीस दी हुई है, सपोज करें ये मंथली फीस है, मुझे ईयरली फीस शो करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट नेम कॉमा फी इंटू 12। तो आपको फी जो हेडिंग बन गया, फी इंटू 12 बन गया, हर किसी की फी को 12 से मल्टीप्लाई करके शो करेगा। यहाँ 2500 से 12 से मल्टीप्लाई किया, 30,000। सिमिलरली नेक्स्ट सारे के सारे वैसे। देन उसको एलियस नेम दे दिया, एनुअल फी, एज एनुअल फी, बिना एज लगाए भी काम हो सकता है आपका, ठीक है। कॉलम अलियास आपको बता दिया, कॉलम अलियास कैसे यूज करना है, एज लगा के कर सकते हो, बिना एज के भी कर सकते हो, जैसे मार्क्स सिक्योर्ड दे दिया यहाँ, ठीक है। सिलेक्ट मार्क्स 1 एज मार्क्स सिक्योर, जो मार्क्स 1 है वो मार्क्स 1 लिखने की बजाय कॉलम का हेडिंग क्या बना दिया, एज मार्क्स सिक्योर, तो मार्क्स 1 लिखे आने की बजाय क्या आ गया, मार्क्स सिक्योर, ठीक है। अगर हर किसी क्वेरी में बीच में टेक्स्ट चाहिए, सपोज करो मेरे पास है सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मैं बोलता हूँ हु हैज सिक्योर्ड, ये हर किसी लाइन में लिखा आ जाए, तो वो भी लिखा सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, इसको हम प्रैक्टिकली कवर करते हैं। यहाँ मैं चाहता हूँ सिलेक्ट ADNO कॉमा नेम पेड, हर जगह पेड लिखा जाए, पेड रुपीस, ये भी साथ कर, पेड रुपीस कॉमा फीस फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ देखो, दिस एडमिशन नंबर अनुजैन पेड रुपीज दिस, अब हेडिंग भी पेड रुपीज होंगे, मैं चाहता हूँ हेडिंग कोई ना आए। अगर हेडिंग कोई नहीं रखना तो उसके अलियंस नेम को ब्लैंक कर दो। ये कॉलम हमने खुद का इंसर्ट किया, टेक्स्ट, हाउ टू इंसर्ट द टेक्स्ट इनटू द क्वेरी। अब यहीं स्पेस डाल के आपने क्या कर देना, सिंगल कोट्स के अंदर स्पेस लो। क्या किया, ये वाला कॉमा जो था वो ये इसका क्लोजिंग का था, इसके आगे यहाँ एज भी डाल सकते हो, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, लो, एज ब्लैंक फ्रॉम फीस फ्रॉम, ठीक है, तो अगला फीस फ्रॉम स्टूडेंट। अगर इसको ऐसे करेंगे, गया हमारा सिलेक्ट ADNO कॉमा नेम पेड रुपीस, ओहो एज के आगे लग गया कमांड, तो वो हमें अभी ब्रेक ही करना पड़ेगा इसको। लेट्स यूज 11th SQL, select student, select ADNO comma name comma paid rupees as blank from student, सॉरी आगे फीस डालना भूल गए, ये ब्लैंक, उसके बाद स्पेस फीस। अब पर्पस हो गया सॉल्व कि एडमिशन नंबर दिस अनु जैन पेड ₹25, वो फीस की, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्रैक्टिस इज वेल, एटलीस्ट कंफर्म कर दिया करो मेरे को व्हाट्सएप पे कि वी हैव कवर्ड, नाउ नेक्स्ट सेशन कैन बी अपलोडेड, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कैन बी अपलोडेड अकॉर्डिंग। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।